Hello students, so today I'm going to teach you chapter 1 The Wonderful World of Science grade 6. So ये class 6 का जो नई बुक आई है NCERT की उसका ये फर्स्ट चैप्टर है The Wonderful World of Science और इसमें मैं आपको वर्ड टू वर्ड भी एक्सप्लेन करूँगी और आपको नोट्स भी दूँगी, क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड जो भी एग्ज़ाम्स रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं दैट आई मेक श्योर आई इंक्लूड इन दिस. So let's get started. So first, as human beings, we have always been curious about our surroundings. We start exploring our surroundings and ask questions right from our childhood. So did you enjoy discovering and exploring the world around you in the preparatory stage of school? As you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey, trying to explore and understand the beautiful world we live in, and for that we have a new subject, science. Welcome to the wonderful world of science. So in the first paragraph what they are trying to tell you कि as human beings हम हमेशा curious होते हैं. We always think like a scientist. Okay, we are always discovering. When the child is born, the child is curious about the surroundings, what is happening around them. They touch and feel every object to know about them, right? So we are always curious. We just have to take out the best in us and how we can discover the new things around us. So हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं अपनी सराउंडिंग्स को, क्वेश्चंस पूछते हैं इन आवर चाइल्डहुड, वट एवर टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट मे बी, बट वी ऑलवेज आस्क. सो वो पूछ रहे हैं कि आप क्या इन्जॉय करते हैं, डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना वर्ल्ड को अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल. सो येस, सो आप जब मिडिल स्टेज में आते हैं, then in the grade 6 to 8 we will continue this fascinating journey. हम इसी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे और हम ये डिस्कवर करेंगे और एक्सप्लोर करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे द ब्यूटिफुल वर्ल्ड. साइंस क्या है, द वर्ल्ड, हाउ इट वर्क्स एंड व्हाट ऑल इज़ देयर लिविंग, नॉन लिविंग इन द वर्ल्ड, और ये सब कैसे काम कर रहा है, ये सब हम साइंस में पढ़ते हैं. So welcome to the wonderful world of science here. So next is science क्या होती है. Students, you all have to underline these lines. Science is a way of thinking, observing and doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. So what NCERT is telling you, that science क्या है, it is a way of thinking, observing, doing things to understand the world we live in and to uncover the secrets of the universe. So there are so many secrets in the universe. पहले भी बहुत सारी साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए हैं ये सारे सीक्रेट्स, नहीं तो अभी हम उन चीज़ों के बारे में अनअवेयर होते हैं. सो अभी भी कई सारी चीज़ें हैं ऐसी यूनिवर्स में, गैलेक्सी में, वर्ल्ड में, जो अभी भी हमें डिस्कवर करनी है और हम उसके बारे में और जान सकते हैं. सो साइंस नेवर स्टॉप्स, लर्निंग नेवर स्टॉप्स. सो व्हाट इज़ साइंस? साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग. हमें सोचना ही पड़ेगा, देखना पड़ेगा फिर उस पर कुछ काम करना पड़ेगा. डूइंग थिंग्स to understand the world we live in and to uncover the secrets of universe. So these three lines till universe, all of you underline here, because these types of definitions can be asked in the exam or in the oral test like that. So think of it as a big adventure. So हमको साइंस को ऐसे नहीं लेना है कि ये कोई हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या बहुत ही एक टेंशन भरा काम है. आपको इसको एडवेंचर की तरह लेना है. जैसे आप एडवेंचर पार्क्स जाते हो, वैसे ये भी एक नॉलेज है जो कि एडवेंचर की तरह है. तो आप क्वेश्चंस पूछिए, एक्सप्लोर करिए, अंडरस्टैंड करिए हाउ टू डू things and how the things work in the universe, in the world, in our surroundings around us. So for this the most important thing is to have curiosity. So तभी इस बुक का नाम भी क्या है, क्यूरियोसिटी, क्योंकि आपको क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं और आपको साइंस में आगे फ्यूचर बनाना है और साइंस आपको पढ़नी है. सो क्यूरियोसिटी रखनी बहुत ज़रूरी होगी. आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड, ओके, अराउंड यू in a good way, in a right way, and then you will understand more. क्योंकि learning by doing जब होती है तो वो ज़्यादा समझ आती है rather than learning by just learning and listening.
आप जब ये चीज़ें समझोगे और इसे इम्प्लीमेंट करोगे रियल लाइफ में, देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड द साइंस. दैट्स वाई साइंस ऑलवेज हैव एक्सपेरिमेंट्स. Okay, they have hands-on experiments, they have live experiments, now they have virtual experiments also, to make children understand from the early ages of their childhood that how things work in the world and to make the concepts more clear. तो जब आप हाई क्लासेस में जाओगे आपके concepts और clear हो जाएंगे. So for this the most important thing is to have curiosity. All of you underline curiosity. जिज्ञासा रखनी बहुत ज़रूरी है अगर आप साइंस पढ़ते हैं. फर्दर वी मूव ऑन. वेदर इट इज़ स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड or massive mountains, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting. हमेशा हमारे सराउंडिंग में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही एक्साइटिंग होता है, बहुत ही नई चीज़ होती है हमारे लिए. हो सकता है सबको पता हो पर हमें ना पता हो. तो हमेशा हमें क्वेश्चंस पूछने में, हमेशा क्यूरियोसिटी रखने में कभी भी झिझकना नहीं चाहिए. वी शुड ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, नो अबाउट आवर सराउंडिंग्स. ओके, सो चाहे वो इनका मतलब क्या है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो सैंड का एक ग्रेन ही क्यों ना हो, पार्टिकल ही क्यों ना हो, चाहे वो बड़े माउंटेन्स हो, चाहे वो ग्रास की एक लीफ हो, चाहे वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट हो. ओके, तो हमेशा हमें कुछ ना कुछ मिलता है जिसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, कुछ नया होता है. ओके, सो आइंस्टाइन ने कैसे देखा था एप्पल फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, विच इज़ वेरी बेसिक थिंग्स, बट ही हैड दैट क्यूरियोसिटी इन हिज माइंड कि वाई डिड इट फॉल डाउन, वाई डिडंट इट गो इन एनी अदर डायरेक्शंस, लेफ्ट राइट अप. ओके, सो ये क्यूरियोसिटी रखनी ज़रूरी है क्योंकि अभी भी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्कवर नहीं हुई हैं, एंड यू नेवर नो, मे बी यू कैन बी द फर्स्ट वन टू डिस्कवर दैट. ओके, सो वो पूछ रहे हैं आगे आपसे कि आपने कभी नाइट स्काई में देखा है और ये सोचा है कि स्टार्स क्यों शाइन करते हैं. तो स्टार्स की अपनी लाइट तो होती नहीं है. ओके, दे आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. तो वो लाइट आती कहाँ से, स्टार्स तो हमेशा होते हैं स्काई में, पर वो नाइट को ही क्यों विजिबल होते हैं, क्योंकि नाइट में क्या होता है, डार्कनेस होती है और जो क्लाउड्स में स्टार्स होते हैं वो सन की लाइट से चमकते हैं, शाइन करते हैं. ओके, सो दे आर जस्ट मेकिंग यू मोर क्यूरियस. हाउ टू बी मोर क्यूरियस, आप कैसे समझें कि क्या आपके आसपास चल रहा है और क्यों चल रहा है और कैसे चल रहा है. सो इसके लिए आपको क्यूरियोसिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो वो फिर पूछ रहे हैं आपसे कि आपने कभी फ्लावर को खिलते हुए देखा है और कभी सोचा है कि ये कैसे ओपन हो रहा है. ओके, उसमें से फ्रूट्स कैसे आ रहे हैं. सो ये कुछ मिस्ट्रीज़ हैं जो साइंस आपको हेल्प करता है इन मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने में. साइंस आपको इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को, आपकी क्यूरियोसिटी को आंसर करने के लिए साइंस काम आती है. तो साइंस को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चंस. सो द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज़ कि वो हर जगह है. साइंस हर जगह है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ साइंस नहीं है. हर जगह साइंस है और साइंस से ये वर्ल्ड है. और ये बहुत ही ईजी है साइंस समझना, क्योंकि अगर आप छोटी छोटी बातों को समझ गए सो यू विल गेट द होल कंसेप्ट. सो ओशन की गहराइयों से लेके स्पेस की वास्टनेस तक सब कुछ क्या है, साइंस है. किचन में कुकिंग हो रही है, ठीक है, आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं. ओके, ऑल द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज, ओके, वो कहाँ से आएंगे, अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस से, जहाँ से आप सोच भी नहीं सकते, वहाँ से ये सारी डिस्कवरीज आई हैं. ओके, और इन सब साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग जगहों से, कुछ अलग अलग तरीके से ये सब डिस्कवर किया है. ओके, सो किसी के ऊपर लेबल नहीं होता कि यही डिस्कवर कर सकता है या यही क्यूरियस हो सकता है. हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसा एनसीईआरटी में सबसे फर्स्ट लाइन लिखी है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड वी ऑल आर क्यूरियस इन नेचर. तो हम सब ये सब चीज़ें समझ सकते हैं क्योंकि ये तो हमारे आसपास ही हो रही है. ये तो कोई कहानियाँ भी नहीं है, तो कोई स्टोरी भी नहीं है जो आपको इमेजिन करनी है. ओके, ये आपके आसपास हो रही है और आपके आसपास जो हो रहा है वो आप वेल ऑब्जर्व करके भी इतने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं. सो दिस इज़ व्हाट
the first chapter of grade 6 science textbook NCERT is telling you that be curious बनिए नेचर में, ठीक है। अपने अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो आप आसपास देखते हैं, उसे क्वेश्चन करिए, उसे पूछिए, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो पाए, ओके। और डिस्कवरी कहीं भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जगह डिस्कवरी होगी, डिस्कवरी कहीं भी हो सकती है। आप कहीं पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई भी क्वेश्चन आ सकता है रिलेटेड टू साइंस, रिलेटेड टू द वर्ल्ड, हाउ इट इज़ वर्किंग, सो यू शुड ऑलवेज आस्क, ओके। सो साइंस कैसा है, अनएंडिंग जिक्सॉ पजल है। यूनिवर्स इतना वास्ट है, इतनी बड़ी गैलेक्सी है, वहाँ पे इतने प्लैनेट्स हैं, इतने ब्लैक होल्स हैं कि हमें पता भी नहीं है। और समुद्र इतना वास्ट है कि उसमें भी कितनी टाइप के फिशेस की स्पीशीज़ होंगी, या फॉरेस्ट में कितने टाइप्स के इंसेक्ट्स होंगे जो अभी भी अंडर रिसर्च है। मैनी साइंटिस्ट आर स्टिल फाइंडिंग देयर नेम्स, दे आर स्टिल फाइंडिंग their importance in the forest, their importance in the sea, their importance in the galaxy. So there are so many things in the world which are still need to be discovered, and you never know, you can also become a scientist and discover and research about all those things. So you should always have a curious mind, so that you like science and you understand science more and more, okay. सो हम क्या करते हैं, न्यू डिस्कवरी से हम वन पीस टू द पज़ल हम हमेशा जोड़ते जाते हैं। तो साइंस कैसा है, ये अनएंडिंग जिक्सॉ पज़ल की तरह है। और जब हम कोई न्यू डिस्कवरी करते हैं, तो जैसे पज़ल में स्मॉल पीसेस होते हैं जिससे पज़ल कंप्लीट होती है। तो जब हम कोई न्यू डिस्कवरी करते हैं, जब कोई साइंटिस्ट न्यू डिस्कवरी करता है, तो वो क्या करता है, उस पज़ल में एक नया पीस ऐड कर देता है टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द puzzle, okay. So world is still mysterious, the world still needs scientists, still needs people who understand and are willing to understand. You all know about NASA, they are every day, all the time, they are discovering new things, and many things when they discover, they'll let you know, or they tell to the world, okay. So there are many organizations, ISRO, many organization, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस दे आर वर्किंग इन। कोई डिजीज़ में काम कर रहा है, कोई वर्ल्ड क्या गैलेक्सी को जानने के लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स को जानने के लिए काम कर रहा है, कोई अर्थ को जानने के लिए काम कर रहा है, कोई वेदर को जानने के लिए काम कर रहा है। सो देयर आर सो मैनी डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस। So further I will teach you in the next video, so continue to the next video for the further chapter, okay. So this will be in parts, you can continue, okay students, in the next video.